Here I am going to explain Coulomb's law. So the golden point I am sharing about about the Coulomb's law. Oh man, your matter has been solved. That is very good. Yeah, we can read your messages even now. This is what that is the Coulomb's law. We write that the Coulomb's law is only applicable for two charges. It's applicable for two charges. Coulomb's law is not applicable for single charge. And for the single charge, it's not applicable. You know what? The reason is what? You write the relation f k, q1, q2 upon r square. It means there must be the two charges at least. Two charges, if there are the two charges, then the law is applicable. Okay? We say the law is applicable if at least the two charges are there. Even the Coulomb's law is not applicable for three charges. Okay? Suppose we say three or more, even more. Three or even more. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तीन हो या तीन से ज्यादा हो, उस पर अप्लाई नहीं होगा. Sir, change the blackboard background color. I don't know. Ikra, the color is very clear. Okay, it's okay. Okay. She's right. Okay, the background. What should I choose? The color should be what? The background. The same thing. Now, is it good? That is better. Simply. Okay. Here I was letting you know what? Suppose we write here what? That is the Coulomb's law. And these are the points which are very much important, and we will prove it. Clear? Okay, here I am telling you what? Coulomb's law is not applicable for three or even more charges. Yani this relation indicates that at least the two charges are needed. The Coulomb's law. Even of the same magnitude, suppose there should be the two charges. Sometimes you write in this way, kf is equal to k, q square upon r square. You claim, sir, there is a single charge. True? It is a color down to you. It's not a single charge. Remember this. Oh, I see, because of the marker, because of the color matter. Color matters. So here I am telling you what? कि ये ही चाहे बाबा, ये मैं आपको बता रहा था कि q square upon r square. These are the two charges, but the reason is what? Because of the same magnitude. Suppose this is q, this is also q. It means that the q is equal to q. Both charges are equal, but charges must be two. Now, okay, save this page and I will tell you much more. Save this one. Can you start me save the Okay. So here we go for the next one, okay? Here we go for the next one. Okay, let me tell you, that's another interesting thing I'm telling you. Okay, suppose I say, okay, suppose you have a charge, okay, look at that. This is the charge, suppose this is the point charge. You are placing the different charges at this level. One charge in this, second charge, third charge, and fourth charge. Four charges you are placing. This is the Q1,
Q2, Q3 and Q4. And you are being told to find out, आपको ये कहा गया है हमजा, मैं आपको ये कह रहा हूँ हमजा कि solve the syllabus of the test. Test must be from the chapter number 1. Okay, of it. So मैं आपको बता रहा था, अब now suppose आपको ये कहा जा रहा है कि find the Coulomb's law in case of the 4 charges are acting on a single charge. तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यानी F1 is equal to K, Q and Q1 upon R square. That will be the equation number 1. And here you will apply again K, Q and Q2 upon R square. That will be the equation number 2. And again F3 is equal to K, Q and Q3 upon R square. You know, yeah, the distance might be different. Distance might be different, no problem. You can add R1, R2 and R3 square and so on. And F4 जितनी भी चार्जेस होंगी आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, लुक एट दैट कि आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा. फिर आप क्या करेंगे, यानी इंडिविजुअली आप फोर्सेस मालूम करेंगे कि ये दो फोर्सेस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं. या आपको बताया जाए कि हाउ मच फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन द चार्ज 1. बताओ कि कितनी चार्जेस कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द ऑल चार्जेस ऑन द पॉइंट चार्ज, ऑल चार्जेस ऑन द चार्ज, इट्स क्यू ऑन दिस क्यू चार्ज. तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल अप्लाई दिस फार्मूला कि सर F1 प्लस F2 एंड प्लस F3 एंड प्लस F4 एंड सो ऑन. जितनी भी चार्जेज होंगी तो ये जो होगा, ये हम इस फोर्स को कहेंगे ये नेट फोर्स होगा और सम ऑफ ऑल फोर्सेज हो जाएगा. ये फिर सम ऑफ ऑल फोर्सेज हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेज या सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेज. जितनी भी इंडिविजुअल रिलेशन बनेंगे वो आपको ऐड करने होंगे, इंडिविजुअल फोर्सेज. ओके, यू है. तो यहाँ से पता चलता है कि आप अप्लाई तो करेंगे लेकिन आप इंडिविजुअली मालूम करेंगे और फिर आप सब सारे फोर्सेस का हाँ उससे. ओके, तो you have to apply in this way. You can do this all. Okay, so save this one as I may give you more examples. Okay, move to the second one and the third now page. When you screenshot so here I am telling you what, there is another thing is what, suppose I am saying you, आप यहाँ पे रिलेशन रखते हैं कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर. ये इसमें देखो कौन सी चीजें हम कहते हैं कि ये है तो कूलम्स लॉ है. कूलम्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. यानी जो कूलम फोर्स है, कॉलम फोर्स इज अफेक्टेड, ये अफेक्टिव होती है, ये अफेक्टेड है, affected by changing and distance. ये डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ बताता है कि अगर डिस्टेंस में चेंज होगी तो फोर्स में चेंज होगी. ये इनवर्स लॉ स्क्वायर. ये नहीं बताता कि मैग्नीट्यूड की चेंज से कोई फर्क पड़ता है हमसा. नो, देयर शुड बी नो. अच्छा, तो अब मैं ये आपके बता रहा था कि फोर्स, तो कूलम्ब फोर्स इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग इन डिस्टेंस. अभी इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने दे हर्ष. तो मैं बता रहा था कि कूलम्ब फोर्स इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग इन डिस्टेंस. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. और यही मैं आपको बता रहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. लार्जर फोर्स होगी अगर डिस्टेंस की वेरिएशन होगी तो अगर डिस्टेंस स्मॉलर होता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा. सपोज मैं आपके सामने एक, सपोज आई ब्रिंग हियर रेक्टेंगल बिफोर यू, और ये मैंने इसको 4 माइक्रो कूलम कर दिया, इसको मैंने 8 माइक्रो कूलम कर दिया. ओके, इसको मैंने 8 माइक्रो कूलम कर दिया और इसको मैंने 4 माइक्रो कूलम कर दिया. ओके, 4 माइक्रो कूलम रिलेशन.
ये आपको के सामने ये माइक्रो कूलम है, ये 4 माइक्रो कूलम है, ये 8 माइक्रो कूलम और ये 4 माइक्रो कूलम है। मैं आपको कह रहा हूं कि व्हाट विल बी द लीस्ट फोर्स कहां पे होगी, यानी वेयर विल बी द लीस्ट फोर्स, कम से कम जो फोर्स है बिटवीन कौन सी पॉइंट में होगी। सपोज मैं इसको ए पॉइंट कर रहा हूं, इसको बी पॉइंट कर रहा हूं, इसको सी कर रहा हूं और इसको डी कर रहा हूं। 4 चार्जेस है जो कॉर्नर पे रखी है। क्या आप बताएंगे कि इनके दरमियान, किसके दरमियान जो लीस्ट बिटवीन द ए एंड हमजा ए एंड डी, ये ए एंड डी है। देखो ये 4 4 द 16 हो जाएगा, लेकिन ये देखो ये 4 8 द 32, ये 8 4 द 32, ये 4 8 द 32, ये 8 4 द 32, लेकिन इन दरमियान जो फोर्स है वो क्या है 4 4 द, लेकिन और भी है, इनके दरमियान भी है। इनके दरमियान जो फोर्स होगी, ये देखो इनके दरमियान जो फोर्स होगी, यहाँ पे जो फोर्स होगी ना, ये हो जाएगी कितनी, सपोज यहाँ पे ये 68 न्यूटन है सपोज, और इनके दरमियान जो है 32 होगी, इनके दरमियान भी 32 होगी, इसके दरमियान भी 32 है, इसके दरमियान भी 32 है, इनके दरमियान जो है वो 68 है, लेकिन इनके दरमियान जो है वो लीस्ट फोर्स यहाँ पे होगी। इनके दरमियान ये जो होगी यहाँ पे क्या होगी, या लीस्ट फोर्स। क्यों कि इनका जो 4 4 द 14, न सिर्फ ये मीटर है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ है क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस लार्जर है, और जब डिस्टेंस लार्जर होगा आपसा, तो जब ये आप बेटे अब क्या कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे अगर डिस्टेंस लार्जर होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, वो स्मॉलर होगी, इट मस्ट बी लीस्ट, क्योंकि दिस इज द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बट इवन ये भी वही डिस्टेंस है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का वो स्मॉलर है। ओके, हियर आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। सपोज अभी हम ये कहते हैं कि 4 चार्जेस हैं, सही है, ये जो है वो ये 2 माइक्रो कूलम है, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, ये भी 2 माइक्रो कूलम है, एंड दिस इज आल्सो 2 माइक्रो कूलम है। हमजा ये देखें, अब इनके जो ये स्क्वायर है, द फिगर इज व्हाट, दैट इज द स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और इसके दरमियान कोई भी फर्क नहीं है। ओके, ये एक ऐसी फिगर है जो एक स्क्वायर है, जो चारों साइडें इसके बराबर हैं। तो अब मुझे आप क्या बताएंगे कि अब किसके दरमियान जो है वो फोर्स जो है वो लीस्ट फोर्स कहाँ होगी। हमें मालूम क्या करना है कि वेयर विल बी द लीस्ट फोर्स है। यहाँ पे लीस्ट फोर्स है, ये 2 to the 4, 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 ये डिस्टेंस भी सारे साइडों का बराबर है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो भी आप तय करें, ए बी, इसको आप चेंज कर दें ऐसे, तो ये सी हो जाए, ये सी हो जाए, तो आप ये क्या आगे ए बी सी डी। तो अब जो फोर्स होगी वो कहाँ पे लीस्ट होगी, कहाँ पे, ऑप्शन ए। अगर मैं कहूँ ये जो फोर्स है वो बी सी में है, बी सी एंड डी ए इनके दरमियान, या मैं कहूँ ए सी, या मैं कहूँ ये कहूँ सी डी, नहीं, या मैं ये कहूँ कि ये जो फोर्स है नन ऑफ दिस, किसी में भी लीस्ट फोर्स नहीं है। तो ये जो ये सी डी, ये जो है बी सी और ए डी, बी सी और ए डी या डी ए, ये एक ऐसे ऑप्शन है, बी सी एंड डी ए, ये एक ऐसे ऑप्शन है जिसमें लीस्ट ये फोर्स लीस्ट हो जाती है। ओके, क्यों, यहाँ से पता चलता है कि इट, हाँ इकरा, व्हाट हैपेंड टू यू ज़हरा गोरी, व्हाट हैपेंड टू यू ज़हरा, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो लीस्ट होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस लार्जर है। मैग्नीट्यूड जब सेम हो जाए ना, जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो अब फोर्स डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, बिकॉज ऑल द चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिस्टेंस का है। सर एसी में क्यों नहीं है, एसी में इसीलिए नहीं है कि ये स्मॉलर डिस्टेंस है, जहाँ डिस्टेंस स्मॉलर होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस किसके दरमियान है, बी और सी और ए और डी के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कम हो जाएगी। सर दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लीज, हाउ आई डन इट। तो एक और चीज होती है, जब आप लिखते हैं ना कि सर इसमें तो एक और चीज आती है, आप लिखते हैं ये एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2, बाकी चीजें को आपको पता है ना, इट्स नॉट अ मैटर।
तो आप यहाँ पे आप कहते हैं ये सर जो ये क्या है, ये जो k है ये कॉलम कांस्टेंट है। क्या है ये? कॉलम कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कॉलम कांस्टेंट है फॉर फ्री स्पेस है, ये मैं आपको बताऊं। ये फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है, अदरवाइज ये चेंज होता है। इट्स अ कांस्टेंट ओनली फॉर द फ्री स्पेस है। एवरीबडी पे अटेंशन, दिस इज वेरी मच। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये के कॉलम कांस्टेंट है जस्ट फॉर फ्री स्पेस, ये सही है, सही है, ये कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है आप कहते हैं सर ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। ओके वेल, तो अगर हम ये कहते हैं, हम कहते हैं कि सर द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के कहते हैं ना कि ये डिपेंड करता है, समझा, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन, एक डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरा डिपेंड करता है एंड मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल यानी मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, दुरुस्त है ना? दैट्स वेरी सिंपल। वैसे आप इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर में के का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है ना। आप इसका वैल्यू क्या रखते हैं? ओके मीडियम, ओनली मीडियम, चार्ज पे नहीं के का वैल्यू डिपेंड करता। के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये बराबर होता है 1/4 पाई, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, तो ये बराबर हो जाता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, यही मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो वैल्यू है ये आपको यूं आ जाए 9 × 10⁻⁹ की जगह आ जाए मीटर पर फेराड, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर फेराड बराबर होते हैं किसके? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के बराबर होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के बराबर होते हैं। हम सदा इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट मीटर पर सेकंड, मीटर पर फेराड इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर कॉलम स्क्वायर। पता है, इसको आप सेव करें तो मैं ये आपको समझाऊं कि ये किस तरह से हो जाता है इसके बराबर। ओके ओके ओके, हियर वी गो नाउ another thing which is related with the same k। मैंने आपको बताया इसका एक न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, जो बराबर होता है मीटर पर फेराड के। क्या आपके ज़हन में आया? ओके, हियर टेलिंग यू व्हाट कि के बराबर हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर या मीटर पर फेराड के बराबर है। अब कोई भी नहीं बोल रहा है इसके बारे में, तो जब कोई ना बोले तो आप उसको गौर से सुने। तो मैंने एक और बात कही आपको कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होती है ये किसके बराबर होती है? डू यू रिमेंबर दिस साल कि ये बराबर किसके होती है? हाँ, ये बराबर होती है 1/4 पाई के बराबर होती है। ओके, अब ये वैल्यू आप रखेंगे 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 है और के का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ है, तो ये बराबर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 और ये बराबर होगा कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो मैं चीजें रख रहा हूँ इसकी वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो के का वैल्यू था वो था 1/, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होती है, तो ये भी हमने किया कि 1. तो अब ये 1/, क्या हो जाएगा? 4 × 3.14 × एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब बात मैं बता रहा था आपको कि जो है यानी कॉलम कांस्टेंट and epsilon naught have inverse nature। इन दोनों की जो नेचर है वो इनवर्स है, इनका जो यूनिट है वो भी इनवर्स है, सही है, एक दूसरे के इनवर्स होता है। अब मैंने आपको के का यूनिट बताया जो बराबर होता है मीटर पर फेराड की, और एप्सिलॉन नॉट का फिर क्या होगा?
फेराड पर मीटर होगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, नाउ। तो अब ये देखें, ये इनवर्स है एक दूसरे के, क्योंकि ये कॉलम पर ये जो मीटर पर फेराड है ये बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, और फेराड पर मीटर जो है वो कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलो अब हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसको हाउ कैन वी सॉल्व दिस मैटर। Now you can understand it. Please you keep on watching that. तो मैंने आपको बताया एक होता है मीटर पर फेराड, ओके। फेराड जो यूनिट है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि वाकई ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर के बराबर है। तो आप इस तरह नहीं समझोगे, तो मैं इसके लिए फिर एक अलग पेज उठाना पड़ेगा। Have to save it. Okay. Here look at it now. ये मैंने लिखा है ये मीटर पर फेराड है, ओके। अब पहले तो ये देखें आपके, ये फेराड है क्या? फेराड यूनिट है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या आपको ये पता है ना? दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस आपको पता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वोल्टेज के बराबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चार्ज, क्योंकि चार्ज स्टोर होती है किसी भी कंडक्टर पे जब आप उसको पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। तो ये बराबर के, ये देखो, तो ये Q इज इक्वल किसके होता है? CV के, और ये C बराबर होती है Q अपॉन V के, और ये बराबर होती है कॉलम पर सॉरी ये बराबर होती है कॉलम पर किसके? वोल्ट के बराबर होती है, ओके। तो अब मीटर अपॉन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? यहाँ लिख रहा हूँ कॉलम पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या? वोल्ट, ओके। तो ये देखें, ये जो वोल्ट होता है ना, ये बराबर होता है वर्क डन पर कॉलम चार्ज के बराबर होता है। क्या आपने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा ना कि ये जूल पर किसके होता है? कॉलम के। तो ये देखो, ये मीटर, ये पर कॉलम, और ये बराबर होता है किसके? पर जूल पर कॉलम के, सही है। अगर ये जूल पर कॉलम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा जूल मीटर पर कॉलम स्क्वायर। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या ये आसान नहीं है कि ये जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और अपान ये होता है कॉलम स्क्वायर के बराबर, ओके ना। तो मीटर तो ये वही रहा ना, मीटर, ये न्यूटन, ये जूल बराबर न्यूटन मीटर के, ये मीटर ऑलरेडी रहा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। क्या आपने ये नहीं देखा? क्या आपने ये नहीं देखा कि ये वही चीज थी जो मैंने आपको बताया कि ये मीटर पर क्या है? फेराड है, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते डेरिवेशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, आप हल करना सीखें चीजों को, तो इस तरह से आपकी ग्रिप में चीजें आएंगी। बिल्कुल कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। ना सुनिए आप, यू कैन डू इट। हाउ मच इंपॉर्टेंट दी थिंग्स आर, यू कैन इमेजिन दैट। हाउ मच इंटरेस्टिंग दी थिंग्स आर, you can joule meter per coulomb square. This is also equal to this one. This is also equal to this one. These all are related to each other. What interesting it is to know कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। जूल मीटर पर कॉलम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? That is the thing. Have to do anything. तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। सिमरन इंतजार कर, tomorrow it is expected to explain. And this is the point charge. Point charge is the positive charge having a larger magnitude as compared to test one. Okay, test charge is the negligible charge having the magnitude very small. The magnitude which is very small, negligible magnitude. The charge having the negligible magnitude. The charge whose magnitude is approximately approaching to zero. Such charge is called as the test charge. The charge which does not produce the field around it is known as the test charge. Okay, suppose I am writing. This is not the discussion to do now. Test charge, yani this is
the small charge, the small. We talk about the small charge whose magnitude is approximately zero. Approximately zero. And does not produce its field. Does not produce its field. That's known as टेस्ट चार्ज. तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी ये टेस्ट चार्ज होती है और ये अप्रोक्सीमेटली ये जीरो के होती है. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल. या दिस इज totally correct. Please, this is to be said now. So these are very much important points to be noted. Okay. So here the student, we go for the next. So here we go for another thing which I want to discuss with you. Interesting here is to know something about that. Yeah. And we go for that. सपोज आप इस तरह कर रहे हैं क्या कि सपोज यू हैव द टू चार्ज. आपके पास एक ये चार्ज है. ओके. अनदर चार्ज यू हैव द टू चार्ज. सपोज हम आपको ये कह रहे हैं कि ये एक चार्ज है जो सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रो कूलम है, जैसे मैंने आपको बताया. ओके. और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 माइक्रो कूलम है. ओके. और इनके दरमियान जो फोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो 32 है. क्या कह रहा हूँ? द फोर्स देयर इन बिटवीन देम इज व्हाट. वो मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो 32 न्यूटन है. ओके. लेट अस सपोज ये एक चार्ज है जिसका मैंने आपको Q1 बताया, या आपको मैंने Q. ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. यू हैव ऑलरेडी द पॉजिटिव चार्जेस. Kapoor. It will be explained tomorrow. Tomorrow we will talk about electric field. Okay, wait for tomorrow. So here we go with another charge of, मैं कह रहा हूँ another charge of -4 microcoulomb is added with both of the charges, with both of these charges. Now the force between charges, अब आपने क्या करना है कि ये 12 उसाद 12 Hamza 12 Newton. What happened to you, Hamza? Are you in sense as a man? What the hell you are talking about? Oh, what the come back means? Oh no, Harsh Demra. Okay, Harsh, Mac Charlie. Of course, I'm telling you what. देखो, मैंने आपको बताया था आपके पास दो चार्जेस हैं. एक चार्ज है आपके पास वो था 4 माइक्रो कूलम का था. ओके. आपने इसको क्या, दूसरी आपके पास चार्ज थी वो थी आपको ये कुछ ज्यादा इससे बड़ी चार्ज है 8 माइक्रो कूलम की थी. ओके. अब इसमें आपने -4 ऐड कर दिया, -4 माइक्रो कूलम, और इसको भी आपने -4 माइक्रो कूलम दिया. ओके. तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, ये दोनों एक दूसरे को अभी ये कैंसिल कर गए. ओके. तो यहाँ पे इसका बच गया 0. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 0. ओके. एंड दिस इज व्हाट देयर इज अनदर चार्ज. ये जब आप इसको -4 दिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया, अब जो आया वो क्या आया, वो आया है इसका 4 माइक्रो कूलम. यानी एक चार्ज बच गई, दूसरी अब चार्ज एक बच गई, तो एक पे कभी भी अप्लाई नहीं होगा. ओके हमजा, नाउ यू आर करेक्ट. एज ये मैंने आपको बताया है, एज द कूलम फोर्स is not applicable for the single charge, not applicable for
सिंगल चार्ज, एक चार्ज पे ये अप्लाई नहीं होगी, सो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अब जो नेट फोर्स है या हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मोर एप्रोप्रिएट होगा। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि अब सिंगल चार्ज बच गई है। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वन। डियर्स, आप समझ गए ना ये चीज? इट मीन्स आई एम राइट जी? या बतुल यू आर राइट। Answer is zero. It's okay, Sanjana. Now you are alone, Sanjana, or the faith will not be allowed to attend, please. So please leave. If you are, tomorrow it's not open for anyone. So kindly you either get registration or anyway. So we go for the next one. I think I have saved it. So here we go for 18 So I was letting you know, student, charges, these are the charges. मैंने आपको बताया ये सिर्फ दो चार्जेस हो, कोई भी चार्ज दो जीरो मैग्नीट्यूड ना हो जिसका, तो वो अप्लाई होगी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे के जो डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे। देखिए, आपने के का जो वैल्यू लिखा था वो लिखा था द वैल्यू ऑफ के यू मेंशनड व्हाट, के का वैल्यू आपने लिखा था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एक सिस्टम में ये वैल्यू वेरिएबल है, ये फ्री स्पेस में कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। अब आप देखो, आप ये कहें कि आपके वैल्यू आपके इनसीजीएस सिस्टम, हम इसको यूं कर रहे हैं ना, देखो ये यूनिट्स भी चलती हैं फर्स्ट ईयर वाले, ये रुकते नहीं हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये 9 × 10⁹ रहे, और ये न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, क्या आपको याद है? और ये मीटर जो बराबर होता है वो 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है अपान कूलम्ब, तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ ओहो 5 ये पावर है, तो ये हो जाएगा 14, ओके, इंटू ये डाइन, ओके, इंटू 10⁻²⁴ 10⁻⁴ इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये देखिए, तो अब ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, ये 18 हो गया। देखो ये वेरिएबल है, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पे? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अभी ये वैल्यू चेंज हो गया, पहले 9 था, अभी 18 हो गया। तो ये मैंने इसको क्या किया, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये चीजें आपकी जहन में होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि यानी वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। और दूसरी मैंने आपको बताई थी कि वैल्यू ऑफ के ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल। ये कहते हैं ना नेचर ऑफ मटीरियल, सही है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, यानी द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है इन फ्री स्पेस, ओके, इन फ्री स्पेस ये कांस्टेंट होता है, बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक की सूरत में, यानी मीडियम की सूरत में, जो मीडियम है, मटेरियल है, प्लास्टिक है, रबर है, मिका है, गिलास है, मिका है, प्लास्टिक है, रबर है, अब कोई भी चीज है,
वुड है इवन, या कोई भी चीज़ है, अगर आप इनके बीच में रखेंगे, रबर है, नायलून है, एबोनाइट, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अगर आप ये डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, मटेरियल रखेंगे इनके, बट इनके सब डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ के डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होता, वैल्यू ऑफ के डिक्रीज। क्या आप सबको ये पता है जो मैंने ये बात लिखी है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैंने लिखी है कि इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको ये कहा कि जो बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक द मीडियम यानी डायलेक्ट्रिक यानी मीडियम वैल्यू ऑफ के डिक्रीज, ये कम हो जाता है। नहीं, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर भी कांस्टेंट है, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, हर एक का एप्सिलॉन आर चेंज होता है, मैं बताता हूँ। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मिसाल के तौर पे देखें, आपने डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। ओके, अब जब आप डाइलेक्ट्रिक, ये फ्री स्पेस में होता है, फ्री स्पेस में ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू जो है वो बराबर है 9 × 10⁹ के बराबर है, याद है ना। अब मैंने आपको कहा डाइलेक्ट्रिक, फॉर डाइलेक्ट्रिक तो ये बराबर किसके हो जाएगा? तो ये फिर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर होगा। अगर आप एप्सिलॉन नॉट भी है तो ये भी रखेंगे 1/एप्सिलॉन आर। तो ये जो वैल्यू है ये डिवाइड होगा, यानी ये जो के का वैल्यू है 9 × 10⁹, ये डिवाइड होगा एप्सिलॉन आर से। तो ये जब डिवाइड होगा ये वैल्यू तो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि के जो मिसाल के तौर पर रबर का जो के है, रबर का आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर वो 3 है। अगर आप इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे किसी 3 के साथ, तो जो नया वैल्यू होगा वो 3 × 10⁹ हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको मिसाल जो मैंने आपको बात बताई कि जब आप मीडियम को रखेंगे तो ये वैल्यू जो है, के का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी आपके नोटिस में होना चाहिए। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन इन दैट वे। तो कॉलम का आपको पता है कि ये जो होता है ना, जो कॉलम होता है, ये जो कॉलम है, कॉलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये आप कहते हैं ना कि सर ये तो एम के सिस्टम में एम के से ए सिस्टम में या ऐसा सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो कॉलम है, चार्ज का यूनिट। और ये कॉलम हम कहते हैं कि बराबर है एम्पियर × सेकंड के बराबर होता है। इसके एम्पियर × सेकंड के बराबर होता है। सर डायलेक्ट्रिक को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से, कारण है। तो ये कॉलम बराबर होता है किसके? एम्पियर × सेकंड। यानी अगर मैं कहता हूं क्या, अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट पास हो और कितनी देर में हो? 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे जो इसमें चार्ज स्टोर हुई है इस कंडक्टर पे वो कितनी हुई है? 1 कूलम हुई है। The quantity of charge is said to be 1 coulomb if वैक्यूम एंड फ्री स्पेस एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये कॉलम × एम्पियर × सेकंड हो जाएगा, यानी 1 कॉलम चार्ज कैसे होगी? 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मस्ट सेड टू बी दिस 1 कॉलम। ओके, अब 1 कॉलम चार्ज बराबर होती है, यानी 1 कूलम चार्ज जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज ये बराबर होती हैं किसके? दैट्स इट इज इक्वल टू, है किसी को याद? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतनी होती हैं। यानी द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और ये ईच इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कॉलम होती है। यानी चार्ज, क्या कह रहा हूँ? चार्ज इस तरह से। ओके, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम करनी है, चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट होगी, तो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? यू हैव टू अप्लाई इन दिस वे, यू हैव टू अप्लाई एनी के बराबर होगा। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज डिटरमाइंड व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मल्टीप्लाइड बाय द
चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। जैसे ये Q बराबर हो जाती है एन ई के बराबर हो जाती है। ओके, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट। ओके, सो होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। यानी ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हो तो Q अपॉन E हो जाता है। क्या हमसे आपको पता नहीं है? क्या हरीश आपको पता नहीं है? तो ये कैसे, ये हम कहते हैं कि आपको ईच इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि क्या एक कॉलम पे, एक कॉलम चार्ज का मैग्नीट्यूड एक कॉलम पे है और उस पे एक इलेक्ट्रॉन कितनी चार्ज कैरी करता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम गया तो 1 को डिवाइड करो इसे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 6.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर? These are the small things, but these are very much important things. My dear student, I wish you good luck. And if you have any question, you can ask, please. Whatever you want to ask, anything from the topic. This topic, sir, क्या कॉलम? नहीं, वो तो है। ये स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। वहां पे आप जब करेंगे तो आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ द मूविंग चार्ज। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। जहरा अम्मी ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये डाइलेक्ट्रिक, ये क्या होता है? दैट इज द इंसुलेटर। सर परमिटिविटी ऑफ फ्री विसेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी इज द कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 1 to 80 होता है। ओके, और फ्री स्पेस की जो वो कांस्टेंट है उसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। Q इज इक्वल टू एन। थोड़ा सा रिपीट करें सर। आमिर इज वेरी इजी, जो मैंने लिखा है आप इस पर प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान है। अगर नहीं तो आप क्वेश्चन भेजना, आई विल डू दैट। सर डाइलेक्ट्रिक फॉर एयर किसके इक्वल होती है? डाइलेक्ट्रिक फॉर एयर उसका जो है ना 1 नहीं होता है, एक ही होता है वैल्यू, उसका वैल्यू 1 कंसीडर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। Any question, another question, if you have any question you may ask. Yeah, if epsilon r are variable, this depends upon the nature of a dielectric. तो ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट निकल आई इसके क्वेश्चन से। Epsilon r is very much important, it's valuable. कैसे? How much important point it is? Can you imagine that? कि epsilon r is variable, it depends upon nature of material. वही के वाली बात हो गई ना, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है इसकी रेंज होती है, और एप्सिलॉन आर की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 1 से लेकर 80 तक। ये वैल्यू होते हैं डाइलेक्ट्रिक का, मिका का, गिलास का, रबर का, हर चीज़ का अपना अपना वैल्यू होता है। हम थे किडनी के अंदर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड काउंटर करंट में। अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे, फिर मैं काउंटर करंट बताऊंगा, वो भी आप बताएंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो रिपीट करवा रहा हूं। सुने भाई, मुझे बताएं ये बाउमिन कैप्सूल कहां पर है? मेडुला में है या कॉर्टेक्स में है? ओके, कॉर्टेक्स में। ये पीसीटी कहां पर है और नेफ्रॉन का बड़े में बड़ा या छोटे में छोटा पोर्शन है? ये भी कॉर्टेक्स में बड़े में बड़ा। और ये नीचे जो लूप आ रहा है, ये लूप कहाँ पर है? और लूप के अकॉर्डिंग 2 टाइप के नेफ्रॉन हैं, बड़े लूप वाला और छोटे लूप वाला। ओके, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी नेफ्रॉन। ये वाइट पोर्शन का यहाँ पे मेडुला है। ओके, और ये डीसीटी है, और ये फाइनली ड्रेन हो गई इनटू द, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट को छोड़कर डीसीटी तक ये नेफ्रॉन के पार्ट है। सुने भाई, अब मुझे सवाल ये पूछना है कि रीएब्जॉर्प्शन कौन से पॉइंट पर होगी? राइट द नेम ऑफ दोज पार्ट्स। पीसीटी लूप ऑफ हेनले के दोनों में,
डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कहां पर नहीं होगी, कहां पर नहीं होगी? डीसीटी में होती है थोड़ी, असेंडिंग लिम्ब में से नहीं होती, इम्परमिएबल फॉर द वाटर। ओके, बाउमिन कैप्सूल में तो नहीं, वो तो एब्जॉर्प्शन होती है बाउमिन कैप्सूल में। चलो, ग्लोमेरुलाई और मल्फिजियन बॉडी में क्या डिफरेंस है? ग्लोमेरुलाई ओनली कैपिलरी को कहेंगे और मल्फिजियन बॉडी दोनों को। ओके, और अफ्रेंट और इफ्रेंट में से इनपुट कौन देगा? अफ्रेंट। आउटपुट कौन निकालेगा ब्लड का? इफ्रेंट। और आउटपुट कम होने की वजह से प्रेशर डेवलप होगा, हाइड्रोस्टैटिक, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होगी बाउमिन कैप्सूल के अंदर फ्रॉम द ब्लड। ओके, अब ये मैं बना रहा हूं रेड कलर की ब्लड वेसल। ये कौन सी ब्लड वेसल है? पेरिकैपिलरी ट्यूबुलरी। ये फॉलो करती आ रही है नीचे 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 लूप ऑफ हेनले की अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ भाई, कौन सी ब्लड वेसल सोडियम एंड क्लोराइड लेगी असेंडिंग लिम्ब से? वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब। ये मेड्यूला बीच में रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। कौन सी जगह? मैंने पूछा था, अभी मुझे याद आ रहा है, ये तो मैं पूछा था मैंने आपसे, कौन सी जगह है जहां पे ब्लड के अंदर मिनिमम अमाउंट का वाटर है? सारा खो चुकी है, यहां पे थोड़ा पानी है और साल्ट दिए गए हैं। चलो, अब काउंटर करंट मैंने पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाई थी काउंटर करंट की, बताएं। नो, तो सुने भाई, काउंटर करंट सारा आपने पढ़ लिया है, जस्ट सुने, मैंने पढ़ा लिया है मैकेनिज्म, जस्ट सुने, डेफिनेशन सुने। हाँ, काउंटर करंट का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें दो सिस्टम चल रहे हों और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों। भाई सुनिए, यहाँ पे जो फ्लो है, एक फ्लो है जो, किसका फ्लो? ब्लड का फ्लो यूं है, और नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट का फ्लो उससे उल्टा है, ऐसे। तो बताएं ये अपोजिट फ्लो है कि नहीं? अपोजिट फ्लो है तो इसे कहेंगे काउंटर सिस्टम पर कौन सा? काउंटर करंट फ्लो वाला। काउंटर करंट फ्लो वाला, फ्लो के हिसाब से ये अपोजिट है दोनों सिस्टम। कौन से सिस्टम? ब्लड और नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट। अच्छा, एक और काउंटर करंट है जिसमें ग्रेडियंट अपोजिट है, जिसमें ग्रेडियंट अपोजिट है। ग्रेडियंट समझ रहे हैं क्या है ग्रेडियंट? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मुझे बताएं, अगर फ्लो अपोजिट नहीं होता तो क्या होता? आप कहेंगे सर आपका मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल हैं यहाँ से नहीं जाती, अगर यहाँ से आती, यूं चलती ऐसे जैसे नेफ्रॉन जा रहा है, तो क्या होता? आप कहेंगे सर पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होती। पीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ था बताएं तो कमेंट में। पीसीटी में रीअब्जॉर्ब
90% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, वाटर भी, सॉल्यूट भी, ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी, वाटर भी। तो जब ब्लड यहाँ से वाटर ले जाती, ब्लड के पास पानी आ जाता, तो क्या मेड्यूला से ये ब्लड पानी वापस ले सकती? अभी सुने, फिर भी सुने मेरी बात। मैं फिर, हाँ आप सही कह रहे हैं, नहीं मगर मेरी बात सुने, आप ही की बात करूंगा मगर समझा के कैसे। सुने, अगर अब यहाँ पे से ब्लड आ रही है ना, यहाँ पे ब्लड के पास पानी है ही नहीं, तो जब ब्लड आ रही है ये मेड्यूला में, तो भाई मेड्यूला क्या है, मेड्यूला के बारे में बताएं। हाइपर है। और ब्लड क्या है बताएं, ब्लड के लिए हाइपर है, ठीक है। और ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे, ये फिल्ट्रेट ये क्या है, हाइपर है। अरे भाई ये क्या हुआ, हाँ ब्लड इज मोर हाइपर, ब्लड इज मोर हाइपर। तो भाई यहां से नेफ्रॉन के से ब्लड को जो सोडियम क्लोराइड दे रहे थे, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मेड्यूला से, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, सॉरी, जो नेफ्रॉन से ट्रांसपोर्ट हो रही है मेड्यूला में, पहले मेड्यूला में जा रहे हैं, मेड्यूला के थ्रू वासा रेक्टा में, सीधा सा समझ लें, जो सोडियम क्लोराइड है ये नेफ्रॉन से जा रहे हैं ब्लड में, ठीक है ना, नेफ्रॉन से जा रहे हैं ब्लड में। तो ब्लड मेड्यूला से ब्लड क्या है, हाइपर। और साल्ट ले लिए और ब्लड क्या हो गई मेड्यूला पे, हाइपर। तो भाई हम कहते हैं मेड्यूला हाइपर है, क्या इस सेंस से कहते हैं कि ये ब्लड से हाइपर है, या इस सेंस से कहते हैं कि मेड्यूला के अंदर जो फिल्ट्रेट आया है पीसीटी से, वो पीसीटी का फिल्ट्रेट जो है उससे मेड्यूला हाइपर है, फिल्ट्रेट से हाइपर है, फिल्ट्रेट से हाइपर है। तो हाइपर है तो यहां से पानी आया ना, पानी आया ना। अच्छा, ये जो पानी आया, ये पानी किसने ले लिया, मेड्यूला से, किसने ले लिया, मेड्यूला ने लिया। वीडियो ऑफ करें अपनी, जिसकी वीडियो ऑन है काइंडली। आप कहेंगे सर ये नेफ्रॉन का पानी मेड्यूला में, मेड्यूला से पानी ले लिया ब्लड ने, मेड्यूला से पानी किसने ले लिया, क्यों भाई? आप कहेंगे सर ये जो ब्लड आ रही है बड़े गुस्से से आ रही है, बड़े सॉल्यूट हैं इसके पास, समझ गए आप? तो ये अपोजिट फ्लो का फायदा क्या हुआ, गौर से सुने मेरी दो बातें। अपोजिट फ्लो का ये फायदा हुआ कि जो ब्लड आ रही है उसको सॉल्यूट दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट देकर इतना हाइपर बना रहे हैं कि जो भी पानी ब्लड से फिल्ट्रेट से निकलेगा मेडुला में, मेडुला का सारा पानी ब्लड वापस ले लेगी। तो मेडुला पानी लेकर हाइपर से बन गया था, थोड़ा बहुत हाइपो, ब्लड ने वापस पानी लेकर इसको बना लिया हाइपर। तो मेडुला को रिमेन हाइपर करने के लिए पानी लेने के बावजूद भी इसको हाइपर रखने में ब्लड का रोल है कि नहीं है? है। तो मुझे बताएं ये क्यों है? अगर ये अपोजिट फ्लो नहीं होता तो ब्लड पानी ले सकती मेडुला से। देखिए ये पीसीटी, ऐसा होता ना, ब्लड वेसल ऐसी होती, सपोज करें ऐसी होती ब्लड वेसल, ऐसे नीचे, तो ये ब्लड वेसल पानी लेकर अगर नीचे आती तो मेडुला क्या कहता है इसको, ब्लड को ले जाओ पानी, आपके पास पानी है फिर भी ले जाओ। मेडुला कहता है ये जो आपने पीसीटी से पानी ले लिया है मुझे दो वापस। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस अपोजिट फ्लो का फायदा ये हुआ,
फायदा ये हुआ कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। ये पॉइंट समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब मुझे ये बताएं ग्रेडियंट का काउंटर करंट मेडुला में है या नहीं है? मेडुला और लूप ऑफ एनल के बीच या ब्लड के बीच, लूप ऑफ एनल में ग्रेडियंट का डिफरेंस देखें। ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल है और जो असेंडिंग लूप ऑफ एनल है, मेडुला हाइपर और ये हाइपो, ठीक है, ये ग्रेडियंट है ना। तो ये दो जो सिस्टम है, और इवन आप ब्लड भी कह लें, ब्लड भी हाइपर है, ये है ग्रेडियंट का अपोजिशन। ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग दो सिस्टम मेडुला और फिल्ट्रेट एक दूसरे से ग्रेडियंट में अपोजिट हैं। अगर अपोजिट ग्रेडियंट होता मगर अपोजिट फ्लो नहीं होता, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती ओनली ग्रेडियंट से। आप कहेंगे नहीं सर, यहां से रीअब्जॉर्प्शन होती, अगर ब्लड ऐसे साथ आती तो नेफ्रॉन कहता ब्लड को, भाई आपने पानी ले लिया, हम आप एक दूसरे से बराबर हैं, चलो साथ चलते हैं। ब्लड थोड़ा बहुत पानी लेकर चली जाती, ज्यादा पानी पीना पड़ता, हमें बहुत कुछ करना पड़ता। भाई जिसका वीडियो ऑन है काइंडली वीडियो ऑफ करे, थैंक यू, गुड। क्या दिखा रहे हैं? घर का पंखा, हाँ, छत, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट मैक्सिमम जो ग्रेडियंट है अपोजिट, वो लूप ऑफ एनल मेडुला के अंदर है, लूप ऑफ एनल के अंदर है, मेडुला के अंदर है, ठीक है। चलो भाई, पीसीटी का भी बता रहा हूं। अब इसमें तो ग्रेडियंट हो गया है, क्या ये जो लिम्ब है इसमें भी ग्रेडियंट है या ग्रेडियंट बन रहा है? ये बात बताएं मुझे, ग्रेडियंट है या ग्रेडियंट बन रहा है? सर बन रहा है। कैसे सर? आप कहेंगे सर ये हाइपर हो गया था ना, सॉल्यूशन नीचे आया था, हाइपर हो गया था ना सर। हाँ सर हो गया था। सर जब ये ऊपर जा रहा है ना, ये जो वाल हैं ये मेडुला से इम्परमिएबल हैं, ग्रेडियंट का इनको पता ही नहीं। यहाँ पे इनसे सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्यूट निकाले जा रहे हैं। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है ये बनती जा रही है क्या? सर हाइपो बनती जा रही है। इट मीन्स मेडुला से हाइपो बनती जा रही है। हाँ सर, तो सर जब ये लौट कर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा ना यूरिन, तो मेडुला कहेगा अरे भाई आपको मैंने आपसे पानी छीन कर मैंने आपको हाइपर बना दिया था। समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे पानी छीन कर आपको हाइपर बना दिया था। आप छुपे रुस्तम अपने आप को इस लिम्ब में मतलब क्या कर दिया है आपने? ग्रेडियंट बना लिया है। आप फिर हाइपो हो गए। चलो लौटाओ मेरा वाटर। फिर मेडुला कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। क्या मैंने सही कहा? ये बकार पानी पियार। ओके, तो ये था काउंटर करंट फ्लो का और ग्रेडियंट का। इस काउंटर करंट बनाने का क्या फायदा हुआ कि मेडुला कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी ले ले ताकि यूरिन मिनिमम में मिनिमम बने। तो क्या काउंटर करंट मिनिमम यूरिन बनाने के लिए है? क्या काउंटर करंट यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए है? क्या काउंटर करंट मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए है? क्या काउंटर करंट मिनिमम यूज ऑफ वाटर करने के लिए है? और सारा पानी रीयूज करने के लिए है? तो आंसर सबके यस 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 यस। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये जो काउंटर करंट है ना ग्रेडियंट वाला, इसको मल्टीप्लायर भी कहते हैं। एक्चुअली काउंटर करंट ग्रेडियंट वाला मल्टीप्लायर है, क्योंकि ग्रेडियंट होगा तो रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। रीअब्जॉर्प्शन
मल्टीप्लाई बार 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 मैक्सिमम मल्टीप्लाई होगा पानी का। तो मल्टीप्लायर का मतलब है मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करवाना, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब। ग्रेडियंट नहीं बनता तो मल्टीप्लिकेशन इन द वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। चलो भाई, ये हो गई रिवीजन आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, और वो जो नेक्स्ट चीज है उसका नाम है वाट। क्या टॉपिक है कोई बताएगा? किडनी प्रॉब्लम्स, है ना। पीसीटी में महक बाबा सुने, जब पीसीटी की आप बात कर रहे हैं तो ब्लड के पास जो पानी है वो मेड्यूला से लिया गया है और एक्टिवली सॉल्यूट लिए गए हैं। तो ब्लड के अंदर जो पानी है अभी भी कम है, ब्लड के अंदर पानी अभी भी कम है, जितना था उतना नहीं। क्यों? क्योंकि 90% तो पानी ब्लड को पीसीटी से मिलेगा, 90% तो ब्लड को पानी पीसीटी से मिलेगा। क्योंकि पीसीटी के अंदर बहुत सारा वाटर है। पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर किसके पास है? नया फिल्ट्रेट पीसीटी के पास आ रहा है, और जो ब्लड आ रही है वो साल्ट और मेडुला से वाटर लेकर आ रही है। तो जितने साल्ट लिए उतने वाटर लिया, तो ब्लड रीमेन हाइपर है पीसीटी से। बात समझ आई? मेडुला से क्या लिया? साल्ट लिए और वाटर लिया, अभी भी रहता है, वो पीसीटी देगा। और जिस ब्लड को पीसीटी पानी देगा, क्या वो वापस मेडुला में आएगी या चली जाएगी? विन्योल बनाकर चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था। इफेक्ट ऑफ हार्मोन मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं आपसे पूछूंगा भाई। सुने, इफेक्ट ऑफ हार्मोन का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हार्मोन। कौन बताएगा मुझे? एडीएच का निकनेम। आप कहेंगे सर इसका निकनेम हमने रखा है वासोप्रेसिन, और ये जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस कहते हैं ज्यादा यूरिन का बनना, तो ये क्या है? उसके एंटी है। तो बताएं, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। यूरिन को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। यानी यूरिन को क्या बनाएगा? कंसंट्रेटेड बनाएगा। समझ आई बात? क्या पढ़ाना भाई इनका। तो कब बनेगा ये? कब बनेगा? जब पानी ज्यादा हो या जब पानी की कमी हो, जब आप फास्टिंग में हो या घर वालों ने पानी आपका बंद किया हो, ठीक है, डिहाइड्रेशन स्टेज में। वेरी गुड। और एक हार्मोन है जिसका नाम है क्या? एल्डोस्टेरोन। अब बताएं एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम, कमेंट में कोई बताएगा? मिनरलो, नहीं बताया किसी ने। कार्टिकॉइड, मिनरलो कार्टिकॉइड। मिनरल सोडियम एंड क्लोराइड को मेंटेन करेगा। तो ये किडनी के ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, ठीक है, सोडियम की स्पेशली रीएब्जॉर्प्शन कराएगा एल्डोस्टेरोन। और तीसरा हार्मोन है कौन सा? तीसरा हार्मोन कौन सा है? सुना है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसका हार्मोन होता है पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन ये किडनी के अंदर जो कैल्शियम है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कमेंट में बताएं कि कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होती है? डीसीटी में और क्या हुआ था? डीसीटी पर और क्या हुआ था? ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। भाई डीसीटी से ये ब्लड बनाई मैंने। अब ये बताएं ये कौन सा वाला प्रोसेस है? ये डीसीटी से वापस जाना ब्लड के पास कैल्शियम का इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सीक्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन। और ये रीअब्जॉर्प्शन है और एक्टिव है, सिलेक्टिव है
और ब्लड से सोडियम क्या यूरिया का, अमोनिया का, यूरिक एसिड का ट्यूब्यूल में जाना स्पेसिफिकली एक्टिवली ये ट्यूबुलर सिक्रेशन है, और अमोनियम आयन एंड हाइड्रोजन का इंटरस्टिशियल सेल्स में भी जाना ट्यूबुलर सिक्रेशन है। तो ये बात समझ आ गई, ये हार्मोन का रोल था। चले भाई नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन के बाद। अब ये तो मुझे नहीं पूछना चाहिए कि पैराथ्रोमोन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, पैराथ्रोमोन बढ़ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं पढ़ा लूँगा, कहाँ पे पढ़ा लूँगा, कोऑर्डिनेशन में। हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया या कम हो गया, एडीएच समझ नहीं आया महक को। महक बाबा, एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो कलेक्टिंग डक्ट पर, किस पर, कलेक्टिंग डक्ट पर जाके कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बनाता है। यू नो व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट इज अ कंडीशनल लेयर which can work as a impermeable also work as a permeable। तो इसको परमिएबल बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, एडीएच हार्मोन आएगा, जो कलेक्टिंग डक्ट में आकर कलेक्टिंग डक्ट के जो वाटर के पोर्स हैं उनको खोलेगा। फिर मेड्यूला कहेगा अरे भाई कलेक्टिंग डक्ट तो पानी लेके जा रहा है, ले आओ इससे पानी, फिर पानी की और रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये स्पेसिफिकली एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट एक्स्ट्रा पानी को, जब पानी की कमी हो, कलेक्टिंग डक्ट से भी, यूरिन से भी पानी रीअब्जॉर्ब करवाता है। मैक्सिमम जितना एडीएच ज्यादा होगा उतना यूरिन थोड़ा बनेगा। पकार पानी ने पिया रहे हो दिया जी। ओके बाबा, नाउ what is the topic that we are going to discuss here? The topic for discussion is kidney के प्रॉब्लम, यही है ना टॉपिक। तो भाई किडनी के कौन से प्रॉब्लम है? अगर किडनी, एक इंसान में 2 किडनी है, अगर एक किडनी होती तो भी काम चल जाता। दो किडनी है, इट मीन्स एक किडनी 50% काम करती है, दूसरी भी 50%। और अगर एक किडनी फेल हो जाए, पढ़ाऊंगा कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अभी पढ़ा रहा हूं, सुने मेरी बात, सुनते जाएं गौर से, नहीं छोड़ूंगा कोई टॉपिक, सुने बात को, सुने, मैं ले आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। पूछ रहा हूं आपसे कि ये क्यों होगा, कैसे होगा। तो भाई व्हाई वी शुड ड्रिंक वाटर व्हाइल सिटिंग, गुर्दे अच्छे से काम करते हैं। सुने, तो जब एक किडनी खत्म हो जाए तो क्या आपको पता चलेगा, सिम्टम होंगे? नहीं भाई, क्योंकि जो किडनी काम कम करती जाएगी दूसरी उसको कंपनसेट करेगी। तो जब दूसरी किडनी भी फेल हो जाए, 30% जाके काम करे, दोनों किडनी, एक फेल हो गई, दूसरी ने 100% काम करना शुरू किया, अगर वो भी फेल हो गई, 70% फेल हो गई, 30% बची, फिर बॉडी में सिम्टम बनते हैं। और वो सिम्टम कौन से होंगे किडनी के फेल होने के, बताएं? स्वेलिंग होगी, यूरिन की पीएच चेंज होगी, है ना, वेस्ट ज्यादा होंगे यूरिन में, और जो है बॉडी के अंदर स्वेलिंग, एडीमिया हो जाएगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर रहेगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, वोमिटिंग और नोजिया। नोजिया मतलब फीलिंग लाइक वोमिटिंग, लाइक दैट, मगर वोमिट नहीं हो रही।
तो भाई ये किडनी का फेल होना, या तो किडनी में कोई स्टोन बना है जिसने किडनी को ब्लॉक किया है, आहिस्ता आहिस्ता फेल किया है, या कोई और रीज़न है, कोई ऐसे साल्ट वगैरह चीज़ें हैं, या आप किडनी पर स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस से भी ये मसला होता है। हम पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रेस से ये मसला होता है, किडनी कैसे ज़्यादा काम करती है और बर्डन होता है। अल्कोहल ड्रिंक करने से किडनी फेल होती है, क्योंकि अल्कोहल जब लिवर मेंटेन नहीं करता, ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, मेडिसिन खाने से किडनी पर इफेक्ट होता है। ड्रग्स हैं, जो भी आप जहर खाएं, मेडिसिन खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, या आप कोई नशावर चीज़ यूज़ करें, वो अगर बॉडी में बढ़ती है, लिवर उसको मेंटेन करता है, जब नहीं कर पाता तो किडनी को कहता है निकालो भाई इसको यूरिन में। तो किडनी को ना निकालने वाली चीज़ों को भी निकालना पड़ता है, तब जाके किडनी फेल होती है। जैसा आप देखें शुगर वाले पेशेंट के अंदर, देखें जैसे शुगर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, लिवर नहीं मेंटेन कर सकता ना, तो लिवर किडनी को कहता है भाई मुझसे काम हो गया, जोर अभी जो है आप ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको यूरिन में निकालो। तब किडनी ग्लूकोज को निकालना स्टार्ट करती है और किडनी फेल होती है। शुगर वाले पेशेंट के अंदर भी किडनी के फेल होने के चांसेस हैं। ना निकालने वाली चीज़ किडनी निकाल रही है तो प्रॉब्लम तो होगा ना। यूरिन की पीएच में, ऑस्मोलरिटी में, ये वो सारा कंडेंसेशन में, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्लूकोज यूरिन में आ जाए, ब्लडर में स्टोर हो जाए और जो है यूरिटर से पास हो और किडनी में खड़ा रहे, इफेक्ट तो होगा ना भाई। पानी में सॉल्यूट मिला लें, कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्योर पानी हाथ पे लगा दें और नमकीन पानी, वो कोई नुकसान नहीं देगा ना भाई। यही है मसला। चलो, अब किसी आदमी को किडनी के प्रॉब्लम में से क्या हो गया, किडनी का हो गया स्टोन। अब स्टोन हो गया तो किडनी के स्टोन होने की प्रॉपर्टी क्या है? किडनी स्टोन को रेनल कैल्क्यूलाई कहते हैं। किडनी के स्टोन के बनने को प्रोसेस को लिथियोजेनेसिस कहते हैं। कैल्क्यूलाई मीन्स स्टोन और हार्ड स्ट्रक्चर, स्टोनी टाइप, ठीक है। कैलकुलस मैथ वाली नहीं समझना भाई, कैल्क्यूलाई हार्ड स्टोन टाइप या हार्ड स्टोन। किडनी स्टोन के बनने को लिथियोजेनेसिस कहते हैं। किडनी स्टोन के टाइप हैं। किडनी स्टोन कब बनती है? जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो। मुझे बताएं, जब पानी की कमी होगी तो यूरिन कौन सा बनेगा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड जब होगा तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा? कंसंट्रेटेड कहते हैं सॉल्यूट ज़्यादा हो। जब सॉल्यूट ज़्यादा हो एक चीज़ के अंदर तो वहाँ पे उनके कंडेंस होने, बॉन्डिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम? तो वो सॉल्यूट मिलकर बना लेते हैं एक ग्रेन्यूल। उस ग्रेन्यूल को हम कहते हैं ये किडनी के अंदर स्टोन बन गया। तो ये जो ग्रेन्यूल है सॉल्यूट से बना हुआ है। कब? जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है। या कभी कभी हम कहते हैं किडनी का स्टोन ऐसे होता है कि जो फूड आप खा रहे हैं या जो ड्रिंक जो आप पी रहे हैं वो ऐसी है। कैसी है भाई? उसमें वो सॉल्यूट ज़्यादा हैं जो स्टोन बनाते हैं। जैसे कि भाई आप लीफी वेजिटेबल खा लें। लीफी वेजिटेबल स्पिनच है, वो ब्रासिका के लीफ, क्या कहते हैं उसको उर्दू में? नहीं आ रहा मुझे, सिंधी में साग चवंदाइन है कोई बताने वाला? हाँ, टोमेटो भी ठीक है, साग कहते हैं, चलो ठीक है। लीफी वेजिटेबल, ठीक है। लीफी वेजिटेबल में ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोन करती हैं।
देखते हैं कैसी चीजें हैं कौन सी। टोमेटो में और जो फ्रूट्स हैं उनकी आउटर कवरिंग, जैसे एप्पल की आउटर लेयर होती है उसमें, उन लेयर में, इन चीजों में वो सॉल्यूट होते हैं जो स्टोन करते हैं। भाई कौन से सॉल्यूट हैं? इन चीजों में स्टोन होता है। एक को कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, सुना है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला, ये वो उसकी बात कर रहा हूं, ऑक्जेलिक एसिड। और कैल्शियम, ये इन चीजों में ज्यादा होता है, स्पेशली ऑक्जेलिक एसिड। इट मीन्स ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है? स्टोन करता है। जब ये खाएंगे इट मीन्स ऑक्जेलिक एसिड। वैसे नेचुरली भी यूरिन के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन हम करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है। मगर ये चीजें खाएंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ऑक्जेलिक एसिड में कहता हूं ये जड़ है, ये क्या करती है? बुलाती है कैल्शियम को, इधर आओ इधर आओ, बांड करो, मैग्नीशियम को, फास्फेट को, इसको और बांड बना के ये कैल्क्यूलाई बनाती है। तो जड़ जो है मेनली स्टोन बनाने की वो ऑक्जेलेट है। तो भाई स्टोन के टाइप हैं, एक को कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन, और ये 70% जिन बंदों को होता है उनमें से, आपको नहीं है, आप जिन बंदों में होता है उनमें जो स्टोन होती है 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसकी निशानी है ये वाइट होती है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम आपके जो मिल्क है, जो आपका बनाना है, जो आपके वाइट कलर की वेजिटेबल्स हैं उनमें कैल्शियम है, बोन में कैल्शियम है, बोन मेरो में कैल्शियम है, ठीक है, मिल्क में तो सबसे ज़्यादा है। तो मिल्क को यूज़ करना और साथ ही वेजिटेबल ऐसी खाना लीफी, फिर तो स्टोन को आप दावत दे रहे हैं, आओ भाई हमारे पास स्टोन बनाओ, है ना। तो स्टोन जिसको है उसको क्या करना चाहिए? उसको मिल्क को कम करे, ठीक है, और लीफी वेजिटेबल्स टोमेटो को अवॉइड करे और ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि ये जो कंडेंसेशन होती है ये डिहाइड्रेशन में होती है। जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन बहता जाएगा, थोड़ा बहुत जो स्टोन बना भी होगा वो बह जाएगा, यूरिन में निकल जाएगा। ठीक हो गया भाई, आप डॉक्टर बन गए। चलो भाई, दूसरा वाला स्टोन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट एंड अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, फास्फेट, ये चीज़ें मिलकर स्टोन बनाती हैं। और ये 20% स्टोन इनके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम मैग्नीशियम या कैल्शियम फास्फोरस या कैल्शियम फास्फोरस एंड अमोनियम आयन, इनसे बनती है। ये टाइप की जो स्टोन होती है इसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव स्टोन। ये जो स्टोन होती है बड़ी डेंजरस होती है, ये पेन क्रिएट करती है और ये थोड़ी हार्ड होती है। वहाँ पे क्या कहा मैंने? कैल्शियम ऑक्जेलेट वाली सॉफ्ट होती है, टूटने में, निकलने में और बनने में भी फास्ट होती है। और ये स्लो बनती है, हार्ड बनती है और टूटने में मुश्किल होती है और डैमेज करती है किडनी को ज़्यादा, इसलिए हम इसे कहते हैं इन्फेक्टिव, और पेनफुल होती है। हाँ, वाटर ज़्यादा पिया करें, नहीं होगी स्टोन इंशाल्लाह। एक्सरसाइज किया करें, जंप लगाया करें, ठीक है ना। तो जहाँ पे बनी होगी इधर उधर होगी, पानी से बह के निकल जाएगी। 7 mm से कम होगी तो आराम से निकल जाएगी, 7 से ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड करके सही से चेक करवा लें और डॉक्टर से रुजू करें, में भी जो है लेज़र लगे उनको। चलो, हाँ, जेनेटिक भी है। तो भाई तीसरी वाली जो स्टोन है वो बनती है यूरिक एसिड से। ये 5% बंदों को ये होती है यूरिक एसिड वाली। और चौथी टाइप की स्टोन है जो सिस्टीन नाम का एक, उससे होती है। तो ये टाइप है स्टोन के जो हमारी बॉडी में बन सकती हैं। अब मैक्सिमम स्टोन के बनने के जो चांसेस हैं वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट वाली स्टोन है, ठीक है। ये आपका स्टोन हो गया। अब कैसे तोड़ें भाई इस स्टोन को, क्या करें इस स्टोन का, कैसे निकालें इस स्टोन को, तो ये डिपेंड करता है साइज़ पर, ठीक है। साइज़ पर कैसे सर?
सर अगर 7 mm या उससे कम की साइज है तो आपके जो ट्यूब्यूल है ना, किडनी के, यूरेटर के, ब्लेडर में से जो यूरेथ्रा है उससे ये भाई आसानी से पास हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी, बॉडी को जंप लगाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके साथ पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन से बचना होगा। ये स्टोन खुद ब खुद यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। और अगर स्टोन 8 या उससे ज़्यादा साइज की है, अप टू 2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर को मैं 20 mm कह लूँ, ठीक है, इतनी साइज की हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम रेडियोथेरापी कर सकते हैं। रेडियोथेरापी में बढ़ा रहा हूँ कि रेडिएशन यूज़ करके स्टोन को तोड़ेंगे और जब वो छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर अगेन रास्ते से निकल जाएगी इन द यूरिन। इट मीन्स पानी पीना पड़ेगा। चलो रेडियोथेरापी को पढ़ते हैं। और लिथोट्रिप्सी, यहाँ स्टोन का टूटना, रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए रेडियोथेरापी भी कह रहा हूँ मैं। और तीसरा जो टाइप है 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm से अगर स्टोन बड़ी है भाई, तो यहाँ पे रेडिएशन भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम रेडिएशन से तोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम रेडिएशन देंगे तो किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज होगी, जितने जो कि किडनी के पास लिमिट नहीं है, ठीक है। तो सर्टेन एक हद है, एक लिमिट है जहाँ तक किडनी को हम रेडिएशन देकर डैमेज कर सकते हैं, किडनी में रिकवरी पावर है। मगर अगर ये किडनी के अंदर स्टोन की साइज बहुत बड़ी है तो भाई कट करवा लें, मीन्स ओपन सर्जरी करवा लें, बॉडी को भी कट लगाएं, किडनी को भी कट करवा लें और स्टोन को उठा के बाहर फेंक दें, फिर सिलाई कर दें किडनी की भी और बॉडी की भी। इसे हम कहते हैं ओपन सर्जरी, सर्जिकल ऑपरेशन। ये फाइनल ट्रीटमेंट है। और हाँ, परमानेंट ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर किडनी की स्टोन जेनेटिकल है या डिहाइड्रेशन से हो रही है, जब तक ये चीज़ें अवॉइड नहीं होंगी तो स्टोन होती रहेगी। ये था भाई किडनी स्टोन के बारे में, टाइप्स कैसे बनती है, क्यों बनती है। डायलिसिस का किस्सा बाद में है, उस पर आएंगे, छोड़ दें अभी सुने। हाउ टू कट द किडनी स्टोन, हाउ टू रिमूव द किडनी स्टोन। सुने भाई, मतलब क्या पढ़ने वाले हैं? लिथियोट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी क्या पेंसिल, क्या पेंसिल, PNCL। हाँ भाई, लिथियोट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी का क्या मतलब है? किडनी के स्टोन को तोड़ना। 2 तरीके हैं सर, हाँ ये बता रहा हूँ, लिथोट्रिप्सी में पढ़ा रहा हूँ, सुने। 2 तरीके हैं स्टोन को तोड़ने के भाई। एक तो ये तरीका है कि एक टेलीस्कोप ट्यूब हो, एक ट्यूब हो, वो ट्यूब लगा लें हम, इंटर करें बॉडी के अंदर। कैसे? ये यूरेथ्रा है, उसके ऊपर ये है ब्लेडर, ब्लेडर के ऊपर सर ये है हमारा क्या, यूरेटर। अब अगर इन ट्यूब के अंदर यहाँ या यहाँ ट्यूब के अंदर स्टोन है, ट्यूब के अंदर स्टोन है, तो हम यहाँ से पतला सा ट्यूब इंसर्ट करेंगे यूरेथ्रा से। और अब पूछते हैं कि सर ये ट्यूब कैसे इंटर होगा? तो भाई माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल है इसका, इसके ऊपर, और ये पतला है, ये यूरिनरी सिस्टम से क्रॉस होकर कैमरा लगी होगी इसमें, वो ऐसे नहीं इधर से उधर चला जाएगा, कंट्रोल्ड होगा। ये जाकर हम टारगेट करेंगे स्टोन को, स्टोन तक इसको पहुंचाएंगे। टेलीस्कोप ट्यूब लगा दिया हमने। अब इस टेलीस्कोप ट्यूब की वजह से हम वेव्स छोड़ेंगे, जिन वेव्स को हम कहते हैं क्या कहते हैं वेव्स को? अल्ट्रा सोनिक वेव्स। किसके थ्रू? टेलीस्कोप ट्यूब के थ्रू।
तो ये जो वेव्स होंगी ये इस ट्यूब के अंदर से जाएंगी, किसी बॉडी के पार्ट को डैमेज नहीं करेंगी, सीधा जाके हिट करेंगी स्टोन को। स्टोन टूट गया भाई। जैसे स्टोन टूट गया, स्टोन के टूटने के बाद ये स्टोन जब यूरिन बनेगा तो यूरिन के साथ ये स्टोन ऐसे बहता निकल के आ जाएगा। और अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो हम देंगे शॉक वेव्स देंगे। शॉक वेव्स जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, टेलीस्कोप ट्यूब नहीं होता उसमें। वो सपोज करें यहाँ पे किडनी है हमारी, यहाँ पे, तो यहाँ से कहीं से भी लेज़र लगाएंगे। वो रेडिएशन इतने पावरफुल होंगे आपके गोश्त को क्रॉस करके पास होके किडनी के मांस से पास होकर चले जाएंगे, सीधा जाकर लगेंगे स्टोन को टक 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 ऐसे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम स्टोन को रेडिएशन लगते रहेंगे, स्टोन टूटता रहेगा। भाई सुने, ये जो शॉक वेव्स हैं, जब क्रॉस करते हैं सेल को, क्या सेल को डैमेज नहीं करेंगे? भाई करेंगे। क्यों करते हैं? फिर भाई किडनी में स्टोन पड़ेगी तो वो किडनी को डैमेज कर देगी, हम सेल को डैमेज करेंगे, सेल रिकवर कर जाएंगे, हमने पढ़ा था। और ये बात है कि भाई वेव कितना है, कोई मालिक्यूल जितना कोई बड़ा है, लिपिड जितना है, सेल जितना नहीं ना। तो रेज के क्रॉस करने से कोई सेल एक रेज से मर नहीं जाएगा सेल। तो वहाँ बहुत सारे, जब आधा घंटा कंटिन्यूसली लाखों वेव्स जो लगते रहेंगे हजारों, तो कुछ ना कुछ सेल मरेंगे। तो एक ही जगह से लगते जाएं तो कुछ सेल को मरेंगे, किडनी के भी मरेंगे और बॉडी के भी मरेंगे, मगर वो क्या करेंगे? वो रिकवर कर जाएंगे। तो भाई बात ये है कि जो शॉक वेव है वो पेनिट्रेट करके जाते हैं, मतलब इनमें टारगेट बनाया जाएगा, फोकस रखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। इसमें भाई अगर बाहर से एक्स्ट्रा शॉक वेव लगाएं तो उसको ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। और अगर बॉडी से ना करें तो प्री क्यूटानस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी कहा जाता है, ठीक है। PNCL, प्री क्यूटानस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, PCNL मतलब पेंसिल, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गया भाई लिथोट्रिप्सी के 2 तरीके। अब इसमें भी स्टोन टूट गया, अगर यहाँ पे स्टोन को आपने तोड़ा है, ये छोटे टुकड़ों में तो बट गया। अब निकालेंगे कैसे इसको? तो निकालने के लिए सेम यूरिटरी सिस्टम है जो यूरिन के साथ स्टोन को निकाल देगा। ऐसे नहीं निकल रहा था ना भाई, इस साइज से बड़ा था ना, तभी हमने रेडिएशन लगाए। इस साइज के बीच था, 2 सेंटीमीटर से कम था, 10, 12, 13, 14, 15 mm था, ठीक है। 16, 17, 18 mm था, 19 mm था, 20 mm था, 8 से ऊपर था, तभी हमने रेडिएशन लगाए कि ये रास्ता इतना बड़ा नहीं है, यूरिन फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? टफ होगा। जब यहाँ पे अगर स्टोन फंस जाए ना यहाँ पे, तो इसमें कैपेसिटी है डायलेट करने की, अपने आप को थोड़ा बहुत डायलेट कर दिए, यूरिन के लिए रास्ता बना देती है, मगर किडनी पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये किडनी स्टोन और उसको कैसे तोड़ा जाएगा ये पढ़ा हमने, कल आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और जो टेस्ट है आपकी इस टॉपिक तक होगी। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन वाला पोर्शन है, कोशिश करें वो भी पढ़ लें ताकि मैं उससे भी MCQs ऐड कर लूँ। एंट्री वाले बच्चे हैं आप, इतने नहीं हैं कि आपको नहीं आएगा वो।